پھر یہ انسان آنسوئے فلک ہے جس کی نظر قدسیوں سے بھی مقاصد میں ہے، جو پاکیزہ تر، جو مثال شمع روشن محفل قدرت میں ہے۔ آسماں ایک نقطہ جس کی وسعت فطرت میں ہے۔ ایٹمی ملک کے خواب کی تعبیر، ملک دفاع ناقابل تسخیر۔ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاگی کے پہاڑوں میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے دشمن ملک بھارت کی برتری کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان ایٹمی قوت رکھنے والا دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ملک بن گیا۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو 27 سال مکمل۔ آج کے دن پاکستان مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنا۔ شہری محسن پاکستان کی قربانیوں پر ان کے شکر گزار۔ ملک بھر میں یوم تکبیر ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور پاکستان کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ ایٹمی ملک کے خواب کی تعبیر، ملک دفاع ناقابل تسخیر۔ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑوں میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے دشمن ملک بھارت کی برتری کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان ایٹمی قوت رکھنے والا دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ملک بن گیا۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو 27 سال مکمل۔ آج کے دن پاکستان مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنا۔ شہری محسن پاکستان کی قربانیوں پر ان کے شکر گزار۔ جنوبی پنجاب میں ایٹمی قوت بننے کا جشن شاندار انداز میں منایا گیا۔ مختلف شہروں میں یوم تکبیر پر ریلیوں اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان پہلا اسلامی ملک ایٹمی قوت بن کر سامنے آیا۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ملک کی سلامتی اور حفاظت کے لیے قوم کا ہر فرد کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہے۔ بہاولپور میں یوم تکبیر پر ریلیوں اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کا کہنا تھا کہ آج کے دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے برابر کیا۔ ایٹمی دھماکوں کے باعث پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا۔ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی ڈاکٹر محمد کامران اور طلباء نے افواج پاکستان اور ایٹمی سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سابق لیگی ایم این اے پروین مسعود کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کی عزت و عظمت بلند کی۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، اور ایٹمی طاقت بننے کے ساتھ جو ایک ان کے جو گھمنڈ تھا، جو بھارت کو گھمنڈ ہمیشہ رہا ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم طاقتور ہیں، وہ کسی حد تک وہ نیوٹرلائز ہوا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا ہے پاکستان کی آرمی نے، جواب دیا ہے، وہ منہ توڑ جواب تھا۔ سلام ان اہل تدبر کو جنہوں نے یہ آج قابل فخر دن ہمیں دیا، اور ہم سب آج فخر کے ساتھ سر بلند کر کے پوری دنیا میں خوشی منا رہے ہیں۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت زیادہ عزت کا دن بھی ہے، اور ہمیں فخر آج کے دن پہ میاں محمد نواز شریف نے دنیا کو بتا دیا ہے ایٹمی دھماکہ کر کے کہ پاکستانی قوم ہر مشکل وقت کا اور ہر حملے کا وہ جواب دے سکتی ہے۔ جب انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ہمارے نواز شریف صاحب نے منہ توڑ جواب دیا، اور پاکستان کا جو نام میں نے فخر سے بلند کر دیا۔ رحیم یار خان اور مظفر گڑھ میں بھی یوم تکبیر جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے زیر اہتمام کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ شرکاء نے پاک فوج، قائدین اور محسن پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اے سی مظفر گڑھ عرفان ہنجرا کا کہنا تھا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور رہے گا۔ پاک فوج پر فخر ہے اور ملک دشمن عناصر کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ خانپور، صادق آباد اور علی پور میں بھی یوم تکبیر پر ریلیاں، شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ آج کا دن پاکستانی قوم کے لیے بہت اہم ہے۔ ایٹمی طاقت کی وجہ سے پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ رہنما جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمیں ایٹمی قوت بنا کر ناقابل تسخیر بنا دیا۔ دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ علی پور انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم تکبیر پر ریلی نکالی گئی۔ اے سی فیض فرید کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم کو آج کے دن پر فخر ہے۔ چشتیاں اور لیاقت پور میں بھی یوم تکبیر ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ریلیوں میں سیاسی اور سماجی شخصیات، وکلا برادری اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فضا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ لیاقت پور میونسپل کمیٹی میں سائرن کے ساتھ پرچم کشائی کی گئی۔ پولیس اور ریسکیو عملے کی جانب سے سلامی دی گئی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کا جشن جنوبی پنجاب میں بھی یوم تکبیر جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ شہر شہر ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد، ایٹمی قوت بننے کی خوشی میں کیک بھی کاٹے گئے۔ شہریوں نے 28 مئی کو ناقابل تسخیر پاکستان کی بنیاد قرار دیتے ہوئے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی۔ تکبیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔
डेरा गाजी खान में यौम तकबीर इंतहाई जोश व जज्बे से मनाया गया। नई इंतजामिया के जेर एहतमाम डीसी ऑफिस से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद और MPA मोहम्मद हनीफ पताफी की जेर क़यादत रैली में सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कौमी परचम उठाए शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। MPA हनीफ खान पताफी का कहना था कि 28 मई नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान की बुनियाद है। 10 मई को पाक अफवाज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाक फौज, पाक फौज। मियां वाली में निजी तंजीम ने यौम तकबीर के मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद किया, जिसकी सदारत सियासी और समाजी शख्सियत मलिक सज्जाद ने की। तकरीब में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के अफराद ने शिरकत की। लिया में म्यूनसिपल कमेटी के जेर एहतमाम रैली निकाली गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शबीर अहमद डोगर ने रैली की क़यादत की। लिया में मुस्लिम लीग नून ने भी यौम तकबीर पर तकरीब सजाई। डिविजनल सदर नून लीग एजाज अचलाना और जिले सेक्रेटरी इतलात समेत दीगर अरकान ने तकरीब में शिरकत की और यौम तकबीर का केक काटा। रोड लाल ईसन में इसी महबूब इकबाल की ज़रा क़यादत यौम तकबीर रैली निकाली गई, जिसमें अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और रेस्क्यू एहलकारों ने शिरकत की। साबिक जिला नाज़म मलिक उमर अली का कहना था कि आज का दिन तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। भक्कर में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत यौम तकबीर की मुनासिबत से तकरीब सजाई गई। नून लीग के ज़िली सेक्रेटरीट में भी यौम तकबीर पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िली सदर अब्दुल मजीद खान और दीगर ने केक काटा। बुरेवाला में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर मनाया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान खुदादाद नेमत है, ये मुल्क नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम में खुशी की नवीद है। मई बरकतों का महीना है। 10 मई यौम तशक्क, 28 मई यौम तकबीर है। उधर मनकीरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सरवर कोनैन चौक से प्रेस क्लब तक यौम तकबीर रैली निकाली, जिसकी क़यादत पार्लिमानी लीडर MPA मलिक गज़नफर अब्बास चीना ने की। शुरका ने नवाज शरीफ जिंदाबाद, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदाबाद के नारे लगाए। हम नाराए तकबीर से बातिल को हिला देंगे, हम एटमी कुव्वत हैं, काफिर को बता देंगे। जनूबी पंजाब में यौम तकबीर जोशो खरोश से मनाया गया। जगह जगह रैली और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। फजा नाराए तकबीर से गूंज उठी। शुरका ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा 28 मई 1998 को पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर बना। बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में महकमा तालीम के जेर एहतमाम यौम तकबीर मनाया गया। SC हाई स्कूल बहावलपुर में तकरीब सजाई गई। CEO एजुकेशन तवक्कुल हुसैन का कहना था कि एटमी धमाकों ने मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। गुज़श्ता दिनों भारतीय जारहियत का जवाब भी एटमी धमाकों से दिया गया। एटमी ताकत होने की बिना पर कोई वतन अजीज की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। खुर्शीदाबाद गर्ल्स हाई स्कूल मुजफ्फरगढ़ में भी यौम तकबीर पर तकरीब। DC क़ुर्रतुल ऐन मेमन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तालिबात ने मिली नगमों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। बहावल नगर और बिहाड़ी में भी यौम तकबीर जोशो खरोश से मनाया गया। बहावल नगर में मदरसा जामिउल उलूम ईदगाह से सिटी चौक तक रैली निकाली गई। तलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका का कहना था कि भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मजबूत खड़ी है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बिहाड़ी में तकरीब का इनेकाद किया गया। फजा नारे तकबीर से गूंज उठी। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल खानेवाल में भी यौम तकबीर पर तकरीब सजाई गई। तलबा ने मिली नगमों, तरानों और तकरीर के जरिए पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। जागी की पहाड़ियों ने गवाही दी, कौम ने जब तकबीर की सदा दी, दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया, ईमान, अज़्म और कुर्बानी का परचम लहराया। जामपुर और कोट सुल्तान में भी यौम तकबीर पर रैलियां निकाली गईं। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना था कि आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान 1998 में एटमी कुव्वत बना। एटमी धमाकों की गूंज से दुश्मन पर खौफ तारी हो गया। 28 मई को मिलिट्री और सियासी क़यादत ने वतन अजीज को नाकाबिले तस्खीर बनाया। कोट सुल्तान में निजी अकेडमी के तलबा ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और अफवाज पाकिस्तान को मिली नगमों, तरानों और टैबलों के जरिए खिराज तहसीन पेश किया। प्रिंसिपल का कहना था कि यौम तकबीर सिर्फ एटमी धमाकों का दिन नहीं, बल्कि यह कौमी खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार का दिन है। ए वतन तू सलामत रहे ता कयामत रहे। न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी लोधरा के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी दफ्तर में केक काटा गया। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
लोधरा में न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी के ज़ेरे एहतमाम यौम तकबीर पर तकरीब सजाई गई। मैनेजिंग डायरेक्टर राना अली शवाल असलम की सरबराही में केक काटा गया। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। मलिक हनीफ भुट्टा और चौधरी शहनाज शफी ने आड़तियों और व्यापारियों को केक खिलाकर मुबारकबाद दी। चौधरी शहनाज शफी का कहना था कि पाकिस्तानियों का दिल अपने दिफा और पाक फौज के लिए धड़कता है। 300 दुकानदार से वाबस्ता होने से मुराद ये है कि इस वक्त तकरीबन 6-8 हज़ार बंदों का रोजगार इससे वाबस्ता है, और ये 6-8 हज़ार बंदों का दिल भी एक आम इंसान की तरह, आप आम पाकिस्तानी की तरह अपनी पाक फौज के साथ, अपने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले अफवाज के साथ वैसे ही धड़कता है। एडमिन ऑफिसर मलिक हनीफ भुट्टा का कहना था कि 1998 में अजीम साइंसदान मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर और उनकी टीम की बेमिसाल मेहनत के बलबूते पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अजली दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और मुल्क के दिफा को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बनाया। आज का दिन जो है पाक फौज ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एटमी धमाके किए थे उसकी खुशी में हम ये दिन मना रहे हैं, और ये जो दिन है हमारे लिए पाक फौज और हमारे लिए एक मजबूत दिन है। जो एटमी धमाके हमने 28 मई को किए थे उनकी बदौलत आज पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क माना जाता है। आरती मलिक अजमल अंसारी का कहना था कि एटमी धमाकों ने भारत की गीदड़ भपकियों को हमेशा के लिए खामोश करवा दिया और बताया कि पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत है। सारा क्रेडिट जाता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जो 28 मई को इसने एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को बता दिया कि एटमी ताकत है हम, और हमारा सर फख्र से बुलंद किया। इसकी फौज शाना बशाना खड़ी है अपने सियासतदानों के साथ, अपनी आवाम के साथ। रका का कहना था कि एटमी कुव्वत होना वतन अजीज के लिए किसी एजाज से कम नहीं। पाकिस्तान अपने दिफा और खुद मुख्तारी पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। कैमरामैन सजाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। अब आपको बताएं कि मुल्तान में शदीद आंधी के बायस रेलवे कंट्रोल टावर गिरने का मामला। रेस्क्यू ने 12 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। टावर का कुछ हिस्सा सड़क पर और कुछ हिस्सा रेलवे क्वार्टर्स पर गिरा था। इलाके में बिजली ताहाल मुनक़ता है। मुल्तान में शदीद आंधी की वजह से रेलवे कंट्रोल टावर गिरने का मामला। रेस्क्यू 1122 ने 12 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। टावर का कुछ हिस्सा रोड पर और कुछ हिस्सा रेलवे क्वार्टर्स पर गिरा था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 मोटरसाइकिलें रेलवे टावर की जद में आई। रात तकरीबन 9 बजे का ये वाकया है और ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। तकरीबन 12 घंटे लगे हैं, सुबह ये हो गया था कंप्लीट। बाकी हम अभी बैकअप पे खड़े हैं, रोड क्लियर हो गया है, तो अब इंशाल्लाह ट्रैफिक बहाल है। इलाका मकीनों का कहना था कि रेलवे कंट्रोल टावर गिरने से क्वार्टर्स की छतें और सड़क के गिर्द दुकानें मुतासिर हुई। 1980 में इसको बनाया गया था। गुज़िश्ता रात से लाइट नहीं है। ये टावर अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुका है। इससे पहले जो आंधी आई है उस टाइम भी हमें ये खदशा था कि ये गिर जाएगा, लेकिन इस बार जो आंधी आई है उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। ये आप देख सकते हैं सारे हमसायों के इनकी दीवारें वगैरह गिर गई हैं। रेलवे हुकाम ने रेलवे कंट्रोल टावर गिरने को हादसा करार दिया है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। मुल्तान में तेज आंधी के बायस आम के बागबानों को नुकसान। आंधी की वजह से पकाई के मरहले से गुजरने वाला आम जमीन पर गिर गया। मुल्तानी आम खाने के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। तेज आंधी के बायस मुल्तान के बागबानों को शदीद नुकसान हुआ। पकाई के मरहले से गुजरने वाला आम आंधी की वजह से जमीन पर गिर गया। बहुत नुकसान हुआ। इधर देखो उधर देखो, गट्टुआं दे गट्टू भरे पैन, अगा विकदे नहीं पे, क्या करूं हुण इत्थे साडे तो बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है। बागबानों का कहना था कि इस साल आम के बागात में नुकसान है, बेशतर फल गिर चुका है। बागबानों का मजीद कहना था कि लोग गिरा हुआ आम अचार बनाने के लिए सस्ते दामों ले जाते हैं, जो कि हमारे लिए माली नुकसान का बायस बनता है। जेड़े अंधेरी है, ये इतना माल के रबे बूटे टूट गए, खज्जियां उत्त मुनीज गई हैं, इतना है अल्लाह के काम है। क्या कर सकते, तकरीबन 100 मन अमली तले घेर गई इन बाग। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का आम सिंध और रहीम यार खां के बाद मार्केट में आता है, जबकि अब मुल्तान का आम पकाई के मरहले में दाखिल हो चुका है। आंधियों के बायस दरख्तों पर लगा बेशतर आम जमीन पर गिर चुका है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ जुनेद अनवर, रूही, मुल्तान। रहीम यार खान में मैपको इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत। जिनाह पाक की गली नंबर 5 में बिजली की तारें और खंभों पर नस्ब मीटर्स खतरनाक हद तक नीचे लटकने लगे। इलाका मकीनों में शदीद खौफ हरास फैल गया। रहीम यार खान में जमीन पर लटकती बिजली की नंगी तारें मैपको इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत बन गई। जिनाह पाक की गली नंबर 5 में खंभों पर नस्ब मीटर्स भी खतरनाक हद तक नीचे लटके हुए हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक बिजली मीटर्स जमीन से महज 1 से 2 फुट की बुलंदी पर हैं। राहगीरों, मोटरसाइकिल सवारों और बच्चों को हादसात का खतरा लाहुक हो चुका है। कई बार मुताल्लिका हुकाम को दरखास्तें दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौसम की शिद्दत के साथ साथ सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाती है। अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो किसी बड़े हादसे का खतरा है। ऐसा लगता है इंतजामिया किसी बड़े सानहे के इंतजार में है।
जो मीटर वगैरह लगे हुए हैं ये हमारे लिए मुसलसल खतरा है। हमारे बच्चे यहाँ पे घूमते हैं, इवन जो तारें हैं वो बहुत नीची हैं। जब हम बाइक पे भी जाते हैं तो कई दफ़े ऐसे हादसा हो चुके हैं कि तारें जो वो फंस जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। और मीटर जितना नीचे है कि बच्चे आराम से इनको टच कर सकते हैं। जब बिजली बारिश वगैरह होती है उसके लिए इंतहाई खतरा होता है। तो इसलिए हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन ले और इसका कोई मुनासिब इंतजाम किया जाए। शहरियों ने एक्सीएन मैपको से नोटिस लेने की अपील की है ताकि किसी सानहे से पहले ही अमली इकदाम किए जा सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रूही न्यूज़, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब में सड़कों के मसाइल जूं के तूं बरकरार। तरंडा मोहम्मद पनाह में हाईवे रोड के मुरम्मती काम में मुबैना नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। कबीरवाला शहर की शिमाली सम्त में तामीर किया जाने वाला बाईपास ताहाल मुकम्मल न हो सका। उधर जहानिया का पुल 14 रोड भी टूट फूट का शिकार है। तरंडा मोहम्मद पनाह में हाईवे रोड के मुरम्मती काम में मुबैना नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। सड़क पर मामूली तारकोल और बजरी डालकर खानापूरी की जाने लगी। सड़क का लेवल ठीक न होने और मुबैना नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। कहते हैं सड़क का लेवल ठीक नहीं, ठेकेदार सड़क पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल करके करप्शन कर रहा है। आला हुकाम नोटिस लें। ठेकेदार तो रिपेयरिंग दी गई है, इन्हें कोई लेवल कहनी रोड जरा बड़ेना पे मिट्टी थी गई। ठेकेदार फुल करप्शन गिरी पे। सारी वजीर अपील है कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की वजे और रोड बिल्कुल सही बढ़ाया वजे। ये बिल्कुल नाकिस मटीरियल लेना पे रोड बिल्कुल बेकार बनती पी है। असां ॿियां भी रोडां ॾिठे से बढ़दियां, ॿिए पासे भी कम थींदा ॾिठे से, लेकिन ये जरा कम करना पे ना बड़ी स्पीड करना पे। पता नहीं इनको ॿिए पासे कितों चंगा ठेका मिल गए, हूं पासे भजण की कोशिश है। दूजा करप्शन साढ़े ख्याल है तो करप्शन ही थींदा पे। जो भी शहरियों का कहना था कि ठेकेदार तरक्याती फंड्स हड़प करने के लिए नाकिस मटीरियल लगा रहा है। बारिश हुई तो सड़क फिर तबाह हो जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से जारी सरकारी फंड्स को जाया किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। उधर कबीरवाला का बाईपास शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। शहर की शुमाली सम्त में तामीर किया जाने वाला बाईपास मुकम्मल न हो सका। मौलापुर से चुंगी नंबर 5 तक सड़क ही नहीं बनाई गई। शहरी कहते हैं मरकजी सड़क पर से गंदे पानी की नाली गुजर रही है। शहरियों ने हुकाम बाला से बाईपास की तामीर फौरी मुकम्मल करवाने का मुतालिबा कर दिया। जहानिया के इलाका पुल 14 की मरकजी सड़क भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार। जगह जगह गहरे गड्ढे और खड्डे सड़क पर चलने वालों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। इस सड़क से रोजाना दर्जनों गाड़ियों की आमदरफ्त होती है, मगर खस्ता हाली के बायस आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। मोटरसाइकिल सवार सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि कई बार शिकायत दर्ज करवाई गई मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि सड़क की फौरी मुरम्मत करवाई जाए ताकि शहरियों की इस अजियतनाक सफर से निजात मिल सके।